کہ آپ کی مہینے کی انکم کتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہم میں سے کون سا بندہ جو اکیلا 20,000 روپے کما کے گھر مینج کر سکتا ہے؟ 20,000 روپے کیا ہے؟ 20,000 کیا ہے آج کے اس دور کے اندر 2024 میں اس 20,000 کی کیا ویلیو ہے؟ کیوں آپ 20,000 کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ سے تو بھائی آپ بچوں کو کبھی نہیں پڑھا پائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ روٹی ضرور دے پائیں گے لیکن بچوں کا مستقبل نہیں بنا پائیں گے. اور یہ لازم ہے کہ جس طریقے کی آپ کی زندگی ہوگی اسی طریقے کی سیم آپ کی اولاد کی زندگی ہوگی, بلکہ اس سے بھی بدتر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بڑوں کی زندگی کچھ خوشحال تھی. جو یہ 2024 کا چل رہا ہے اس میں جو غریب ہے وہ پس رہا ہے, زیادہ مشکل میں ہے پرانے والے وقت کے غریب سے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی؟ تو اپنا آپ نے مکمل جو ہے طے کرنا ہے, ٹارگٹ وغیرہ سارے مکمل کیجئے اور طے کیجئے کہ آپ کی مہینے کی انکم کتنی ہونی چاہیے, آپ کے اخراجات کیا ہیں. اور جب یہ ساری چیز آپ مکمل کر لیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ میری ضروریات تو 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے مہینے کی ہے, تو یقیناً پھر آپ کام بھی وہ تلاش کریں گے جو آپ کی ضروریات کو, آپ کے اخراجات کو, آپ کے معاملات کو مکمل کر سکے. کیا ایسا ممکن ہوگا کہ آپ گھر سے روانہ ہو اور گھر سے لاہور تک کا کرایہ گاڑی لیتی ہو 1,000 روپے اور آپ پاکٹ میں 500 ڈال کے چل پڑے؟ گاڑی لیتی ہو 1,000 روپے اور آپ پاکٹ میں 500 ڈال کے چل پڑے, کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا آپ کر سکتے؟ ایسا کبھی نہیں نہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر میری جیب میں 500 روپے ہوا تو یہ گاڑی والا مجھے منزل تک نہیں لے کے جائے گا. اگر 1000 ہوگا تو منزل تک ضرور جائیں گے, لیکن 1000 بھی جیب میں ڈال کے آپ منزل کی طرف نہیں چل پڑیں گے. کم از کم اس 1000 کے علاوہ آپ کے پاس 4-5 ہزار ہوگا, کیونکہ آپ نے واپس بھی آنا ہے. گھر سے سفر کرنے سے پہلے آپ جس سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے تمام معاملات, اس کے تمام اخراجات, سارا اونچ نیچ کو آپ دیکھ کے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں. تو یہ جو زندگی کا اتنا خوبصورت سفر ہے اس کو ہم کیوں نہیں دیکھ کے شروع کر رہے؟ کیوں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اگر وہی کرتے رہے تو ہم بھی وہی ہوں گے جو وہ لوگ ہیں. تو کیا آپ نے کوئی ایک گراف سلیکٹ کر لیا اپنے دماغ میں, یہ ڈائری پہ لکھ لیا ہے کہ کم از کم آپ کی انکم کا لیول کتنا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو پھر اب یہ سوچنے کا دوسرا ٹائم آتا ہے. یعنی آپ نے طے کر لی کہ مجھے کراچی جانا ہے تو جاؤں گا کیسے؟ یعنی کون سی چیز پہ مجھے کراچی جانا ہے؟ اب یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. اب یعنی اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے مہینے کا 2 لاکھ چاہیے تو کون سا ایسا کام ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سی ایسی جاب ہے جو آپ کو 2 لاکھ دے گی؟ اگر کوئی جاب ہے تو کیا اس جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ اگر آپ 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانا چاہتے ہیں, کیا آپ کے اندر وہ 2 لاکھ والی سکلز ہیں؟ کیا وہ 2 لاکھ والی مہارتیں ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلنا پڑتا ہے. اب اگر آپ کو کراچی جانا ہی ہے تو کون سی سواری پہ جانا چاہیں گے؟ یعنی فاسٹ سواری ڈھونڈیں گے نا. اب کراچی تو بندہ پیدل بھی جاتا ہے, کراچی سائیکل بھی جاتا ہے, کراچی کار بھی جاتی, بس بھی جاتی ہے, ٹرین بھی جا رہی ہے اور جہاز بھی جا رہا ہے. تو آپ کون سا سلیکٹ کریں گے؟ یعنی سب سے فاسٹ
तेज तरीन प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आप जल्दी कराची पहुंच सके। राइट सर? कराची जाने के लिए, लाहौर से कराची जाने के लिए हम तेज तरीन प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, और अपनी गुर्बत को खत्म करने के लिए हमने आज तक कभी बड़ा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट नहीं किया ताकि हम गुर्बत से अमारत तक आ जाए। क्या ख्याल है? राइट सर? अब देखिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म जा रहे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें कराची को जाती है, मुख्तलिफ गाड़ियां कराची को जाती है, मुख्तलिफ चीजें कराची को जाती है। तो आपने वो सिलेक्ट की जो तेज तरीन है। आप यही कह रहे हैं ना? या आप साइकिल चुनेंगे, या पैदल जाएंगे, या कार का सफर करेंगे? यानी आपकी कोशिश क्या होगी? तेज तरीन सफर आप करेंगे। अच्छा ओके जी, अब आप मुझे बताइए, आपने पीएचडी कर रखी हुई है और आपको लाहौर से जहाज पर बिठा दे तो यकीनन आप घंटे डेढ़ में या 2 घंटे में आप कराची पहुंच जाएंगे। क्या इस बात को तस्लीम करते हैं? अगर बकरी को ले और बकरी को भी उसी जहाज में बिठा दे तो क्या वो भी घंटे 2 में कराची पहुंच जाएगी या नहीं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो बकरी है, वो जानवर है, ये पीएचडी है, और दोनों एक जैसे जा रहे हैं। अच्छा अनपढ़ बंदा हो या प्राइमरी वाला हो या मिडिल वाला हो, उसको भी जहाज में बिठा दो, और ग्रेजुएट बड़े पढ़े लिखे को भी जहाज में बिठा दो, काबिल को भी और थोड़ा सुस्त बंदे को भी, क्या दोनों इकट्ठे ही कराची पहुंचेंगे? तो इससे क्या मुराद है कि कमाल दोनों बंदों में नहीं, कमाल उनके प्लेटफॉर्म में है जिसके ऊपर वो सवार होकर मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो आपकी सलाहियत को पहचान सके तो यकीनन आप जो भी हैं आप मंजिल पे जरूर जाएंगे। कबलियत भी जरूरी है, तजुर्बा भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ कामयाब और अच्छा प्लेटफॉर्म भी जरूरी है। क्योंकि हालात काम करने से नहीं, हालात आला किस्म के प्लेटफॉर्म पे काम करने से बदलते हैं। कागज एक होता है, अब एक मशीन है 10 रुपए का नोट बना रही है, एक मशीन है वो 50 का नोट बनाती है, एक मशीन 100 का नोट बनाती है, एक मशीन 500 का नोट बना रही है, एक मशीन है वो 1000 का नोट बनाती है, एक मशीन 5000 का नोट बनाती है। कागज सेम है, कागज एक ही है। अब मैं कागज उठाऊं और 10 वाली मशीन में डालूंगा तो क्या बनाएगी? अगर वही कागज उठा के मैं 5000 वाली मशीन में डालूं तो क्या बनाएगी? 5000 का नोट बनाएगी। अगर मुझे 5000 का नोट चाहिए और मैं 10 वाली मशीन में जाके कागज डालूं और उसे ये कहूं, हुक्म दूं कि मुझे आप 5000 का नोट बना के दो, वो बना के देगी? जब मेरे घर की जरूरियात 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है या 5 लाख है, मुझे महीने का 5 लाख चाहिए, तो क्या मैं मिस्त्रियों के साथ जब जाके काम करूंगा तो 5 लाख मिलेगा? मैं किसी पेट्रोल पंप पे काम करूंगा तो 5 लाख मिलेगा? क्या मैं दिहाड़ी करूंगा या 500-700 या 1000 की दिहाड़ी करूंगा तो क्या मुझे वो 5-7 लाख मिल जाएगा? अगर मुझे 5-7 लाख चाहिए तो यकीनन मुझे वहां से मिलेगा जिस जगह से इसकी वैल्यू है। अगर मुझे 5000 का नोट चाहिए तो यकीनन मैं उस मशीन के पास जाऊंगा जो बनाती है। फॉलो करो सर? तो वो मुझे इंशाल्लाह देगी। अब बनना अमीर है, होना कारोबारी है, बनना करोड़ोंपति है, कामयाब है, लीडर है और सोना रोमू पे है? होना अमीर है और जिसका छोटी छोटी बातें, बनना बड़ा आदमी है और जिसका छोटे छोटे मसाइल है। राइट सर? बनना करोड़ोंपति है और काम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे, काम गरीबों वाले, आदत गरीबों वाली, हैबिट गरीबों वाली, मुआमलात गरीबों वाले, महफिल गरीबों
मुंह वाला और बनना अमीर चाहते तो इससे कभी हम अमीर नहीं हो सकते। फॉलो करें सर। बचपन में जब हम छोटे से थे, हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, यकीन मानिए हमें बड़ा शानदार और बड़े आले किस्म के ख्वाब दिए जाते थे। रोजाना हमारे ख्वाब बनाए जाते थे, हमें एक्टिव किया जाता था, हमें लीडर बनाया जाता था। पहले हम ये मुकम्मल कर लें फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो ये तय हो गया, क्या आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें काम करके आप कामयाब हो जाएंगे या नहीं? तो मेरे ख्याल तक अगर आप मुझसे मशवरा करें तो आप उस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं जिससे आप खुशहाल हो सकते हैं। राइट सर? आप उस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं जिससे आप खुशहाल हो सकते हैं। जान कितनी है? अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको महीने का 5 लाख चाहिए और आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया जो 5 लाख महीने का आपको दे सकता है, तो जान कितनी, क्या आप में हिम्मत है 5 लाख कमाने की? क्या आप में सलाहियत है? क्या आप काबिल है? क्या आप डट जाएंगे? क्या दुनिया रोकेगी? आप उनके रोकने पर रुकेंगे या आप तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती? तो अभी सबसे ज्यादा अपनी जात पर गौर करने की जरूरत है। क्या छोटी मोटी बातों में बहाने बनाएंगे? जैसे ही 2-4 दिन गुजरेंगे, 1 हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, छोटे मोटे मामलात पे बहाने बनाएंगे आप लोग। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, मेरी शर्ट खराब है, मेरी पैंट खराब है, मेरा बेल्ट खराब है और मैं दफ्तर नहीं जा सकता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आई हुई है, मुझे घर जाना है, आगे सब चलते हैं। क्या ख्याल है? राइट सर? पहले तो ये बताइए, सोच समझ के फैसला करने से पहले अगर तो हिम्मत है मुकाबला करने की, मुश्किलात उठाने की, बातें सुनने की, हर किस्म के लिए तैयार है, तो फिर चलिए अब मैदाने जंग में शहादत भी लेनी है और तलवार के जख्मों से भी डरते हैं।